this cultural fest unfold. So here, we all are together as a family to mark another landmark of the success in the history of SM Public School. So we are here to celebrate our annual function. मशाल 2024 कहना ये कितना आसान। सोचा कभी एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं, रंग अलग, धर्म अलग, अलग अपना मकान, सरहदें खींची हैं, जमीन पर पर सबका एक आसमान है। उम्र अलग, सोच अलग, अलग सबका मुकाम, रास्ते अलग, हम सफर अलग, पर मंजिल सबकी मशाल है। तुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है, लाख अलग पर एक रंग, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। यहाँ आने और इस वार्षिक महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर इकट्ठा हुए विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले आप सभी सज्जनों को देखकर हम बेहद सम्मानित महसूस करते हैं। आज का ये वार्षिक महोत्सव विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर आधारित है, यानी अनेकता में एकता, जो कि भारत का पर्याय है। विविधता में एकता को समझाने का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश भारत है। एक मोदी को एक साथ पिरोकर जो माला बनी है वो है हमारा देश भारत। वास्तव में यही एक ऐसा देश है जहाँ बहुसांस्कृतिक प्रणालियों के बावजूद भी लोग शांति और सामंजस्य के साथ रहते हैं। Let's move forward with the celebration, and now, ladies and gentlemen, it's time to immerse ourselves in a series of mesmerizing performance that our students have been working on tirelessly. विघ्न हरे संकट मिटे मंगल हो हर काज, विघ्न कटे संकट मिटे मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर हो हे गणपति महाराज। हे गणपति महाराज, विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है। माना जाता है भगवान गणेश मनुष्यों के संकट हल लेते हैं और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परंपरा के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। Now, I would like to call Nividas and Guru for representing the Vandana dance performance. Give a huge round of applause. Please give a huge round of applause for them. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
to take a moment to introduce our esteemed chief guest to all of you. It is my honor to welcome all of you to our annual function, Mashal 2024. It's a privilege to introduce to you our distinguished chief guest for today's event, Mr. Krishan Satyavali, who is the President of Sitarganj Sidgul Industries Welfare Association. Mr. Krishna has played a pivotal role in the growth and success of the Sitarganj Sidgul Industries Welfare Association. Under their leadership, the association has made significant strides in the promoting industrial development, fostering collaboration among businesses and advocating for the welfare of the local community. Their dedication to improving the industrial landscape has earned them respect and admiration across the region. The work and leadership of Mr. Satyavali closely align with the values we celebrate here. Today, progress, innovation and community development. Their tirelessly Yashika Chauhan and I too will guide you forward in today's programs. You all seem very excited, or are you really? Let me ask, how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Oh, it seems you really are excited because our next program needs a very high Josh and energy. The program is a unique one. It can be considered an art, a science, and a way of living all together. What do you think it is? Everyone, what do you think our next program is? Oh, it's yoga. So, give a huge round of applause to welcome the students. हो रहा है नृत्य अब उसको जगा
Satyavali ji, President of the Social Welfare Board, and the others, the guests, those are here with us, are our CEOs of Rajpuri ji, our chairman, Mr. Bhaskar Vadi, and we are also being honored by, blessed by our President Shri D.C. Joshi ji, who had served here for more than 13-14 years. He has been here and he has come to bless us again. Mr. Tiwari ji and Tiwari ji, who also was our ex-principal here, he has come also to bless our students. Along with I also welcome Shri Amarwal ji, एक हमारे पास सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य श्री तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर ट्रस्ट के फाउंडर श्री देवेंद्र सिंह जी पधारे हैं। उनका विद्यालय के प्रांगण में मैं अपनी स्कूल समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आज ही ऐसे पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ आशीर्वाद देने हेतु और सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित हुए हैं ये हमारे विद्यालय के एक छात्र, आपने सुना होगा आशीष जोशी जी, उनके पिता श्री D.C. जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मध्य आए हुए उन तमाम अभिभावकों का जिनके बच्चों ने यहाँ आकर अपने प्रयत्न के साथ इस वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने का प्रयास किया है। उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने विद्यालय पर विश्वास व्यक्त कर और इस विद्यालय को प्रेरणा दी है, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय के उन तमाम अध्यापकों ने जिन्होंने अपना समय निकालकर मेहनत से बच्चों को तैयार किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। विगत 24 वर्षों से इस सफर में जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था, कुल उस वक्त 37 बच्चे से विद्यालय प्रारंभ हुआ था और आज यह संख्या बढ़कर लगभग 1300 के लगभग है। ये सब भी आप सभी अभिभावकों के विश्वास का फल है। अपने विद्यालय के टीचरों के जब शुरू में मेरे विद्यालय में कुल 8 अध्यापक थे, आज ये संख्या बढ़कर करीब 56 अध्यापक यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हमने नए नए विषयों को भी यहाँ इस साल विद्यालय में प्रयोग किया है, जिसमें AI और योगा की शिक्षा भी बच्चों को दी जा रही है। गत वर्ष हमारे गर्व का विषय इसलिए भी रहा है कि हमारे विद्यालय के 3 छात्र PSC एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण कर उन्होंने इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, जिनमें श्री आशीष जोशी जी, अभिनव गैतोड़ी जी और सहवाज जी जो अकाउंट पे हुए थे, वो इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। मैं अपने मध्य श्री दिनेश जोशी जी, हमारे मध्य श्री तिवारी जी भी, इन्होंने 5 साल तक विद्यालय में अपनी छवि से द्वारा विद्यालय को उन्नति के मार्ग में चलाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए तमाम अध्यापकों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ संक्षेप में, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमको यहाँ आकर इस उत्सव की मुख्य अतिथि बनने का जो आभार दिया है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रयत्न किए हैं हमने बच्चों को बाहरी शिक्षा के अलावा बाहरी जगत से अवगत कराने के लिए बच्चों का एक टूर आध्यात्मिक केंद्र मायावती जो कि लोहाघाट में स्थित है, वहाँ भी बच्चों का टूर ले गए और बच्चों ने आध्यात्मिक की वहाँ से प्रेरणा ली है।
इसके अलावा फन सिटी में हर साल बच्चे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए। साथ साथ ही एक फन जो सिटी के नाम से फन है उसका वो लोग उसका अनुभव प्राप्त सेंटर है वहाँ जा रहे हैं। जो उनकी बाकी चीज़ें तो नासा से शुरू की जा चुकी है। उनका वीजा बनना है जो शायद अगले महीने में, क्योंकि बच्चों की व्यस्तता है, उनकी परीक्षाएं प्रभावित ना होना, बोर्ड की परीक्षाएं संलग्न है, नजदीक में है। इसको देखते हुए हमने तो रिक्वेस्ट की है कि या तो फरवरी या एग्जाम के बाद वो जो है उनका जो वीजा बनना, जितने भी ब्लॉक स्तर के खेल हुए हैं हमारे बच्चों ने, जैवलिन में हो, वॉलीबॉल में हो, खो खो में है, लड़कों में, वही उनके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा। इससे बच्चों का रिजल्ट बढ़िया बनेगा और उनको सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा बाकी क्षेत्रों में भी जो समय निकालेंगे शारीरिक रूप से भी, उसके हमने प्रयास किया है। एक नया टीचर योगा के लिए हमने नियुक्त किया है। विद्यालय में शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि शिक्षा सर्वमान्य हो। आम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए 3 बच्चे अगर उनके विद्यालय में है तो तीसरा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, दूसरा बच्चा जो है वो आधी फीस में पढ़ेगा। गरीब बच्चों को उनके माँ बाप जिनके नहीं है उनको विद्यालय निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। कोरोना काल में जितने भी पीड़ित थे बच्चे, उन बच्चों के हमने कई बच्चे ऐसे जिनको हमने शिक्षा के अलावा उनका आगमन, परिवहन, सारी व्यवस्था विद्यालय करता है। ये सभी न सिर्फ PCSC में सेलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और विदेशों में जाकर के अपना रोजगार कर रहे हैं, विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अमेरिका के दौरे में, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गया हुआ था तो एक बच्चे ने आकर मुझे बताया कि मैं आपके विद्यालय से पढ़ के आया हूँ और मुझे तब आश्चर्य हुआ कि उसके साथ के करीब 15-20 बच्चे इकट्ठा होकर मुझको मिलने के लिए मेरे आवास पे आए तो मुझे गर्व महसूस हुआ कि हमारे बच्चों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विदेशों में अच्छा जीवन अर्पण कर रहे हैं। थोड़ा सा माँ बाप का ये सहयोग है और कुछ सहयोग की अपेक्षा मैं भी करता हूँ। कुछ बच्चों से मैं माँ बाप को कोरोना काल के बाद जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी कुछ बदल गई थी, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके हमने उनका भविष्य थोड़ा सा दूसरी तरफ परिवर्तित करने की किया है। प्रवेश विद्यालय के अंदर वर्जित है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल का प्रयोग करने दें। दूसरी चीज़ जंक फूड, मैं देखता हूँ कि सवेरे सवेरे जब प्रेयर होती है काफ़ी बच्चे सक्षम रूप से खड़े होने में असमर्थ होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को सिर दर्द हो रहा है। इसका कारण हमारा प्राकृतिक चीज़ों का न लेना खान पान में और जंक फूड, आप पिज्ज़ा मंगा लीजिए, बर्गर मंगा लीजिए, ये मंगा लीजिए। पहले बच्चे पराठा खाते थे, लस्सी पीते थे, दूध पीते थे। आज के बच्चों के साथ ये कुछ नशे की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। नशा ये नहीं कि वो कोई नशीली चीज ले रहा हो, लेकिन किसी चीज की लत हो जाना वो एक नशा ही है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर कोई परिवर्तन देख रहे हैं कि वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहा है, उसके अंदर अचानक कोई परिवर्तन आ गया है, देर से उठ रहा है, देर तक सोता रहता है, तो ये जानिए कि इसका कारण क्या है। और यही आपसे निवेदन है कि इस बात को गहराई से लीजिए, बच्चे से मित्रवत व्यवहार करेंगे तभी खुल करके आपको बच्चे अपने मन की बात बता पाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार ना हो। सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है कि नशे की मुक्ति समाज हम पैदा करें, बच्चों के अंदर नशे की प्रवृत्ति ना हो। जो नशे के व्यापारी होते हैं बच्चों को मुफ्त में चीज़ें दे करके उनको प्रलोभित करते हैं, उनके अंदर बुरी आदतें डालते हैं। बाद में जब बच्चा इसका व्यसनी हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। मोटरसाइकिल नहीं, जितने भी एक्सीडेंट आजकल हो रहे हैं, बच्चे बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाते हैं जो कि एक अपराध है और इसकी
सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। बच्चा तो भुगतता ही है, लेकिन बिना लाइसेंस के अगर आप बच्चे को मोटरसाइकिल या बाइक दे रहे हैं तो वो अभी आप उसके दंड के भागी माँ बाप बनते हैं। 25,000 रुपये से लेकर के कई महीनों की सजा भी कई लोगों को मिल चुकी है। आए दिन जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनके पीछे मोटरसाइकिल और फास्ट ड्राइविंग है, बच्चों का स्टैंड करना। और इस बात को आपसे भी निवेदन है कि बच्चों को मोटरसाइकिल बाइक ना दें, मोबाइल ना दें। पुनः आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी अतिथि गणों का अभिवादन विद्यालय परिवार की देर से करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विद्यालय के प्रति अपना विश्वास बनाए रखेंगे। आप और हम मिलकर ही बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं और बच्चों को अच्छी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका इस प्रांगण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू और जय हिंद। Thank you very much, sir. SM family, we warm welcome to our DPT City Coordinator, Dr. Punit Goyal, the Secretary of PSA, Sitarganj, Udham Singh Nagar, and Sahodaya, Nanamata, and Mr. Ajay Kumar Bajpayee. आपका SM परिवार यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है सर। थैंक यू। We will welcome to Sardar Devendra Singh Ji, USA, and President of Shri Guru Tegh Bahadur Trust. Those having the social welfare work in Sitarganj and I are there. Sir, welcome here. फोटो तो खींच रहा है। Ladies and gentlemen, boys and girls, get ready to witness a performance that's going to make you tap your feet and go, Gum Gum Bole! Wait. Before we call them, I have a question for you. Do you know? Absolutely right. But you know what is special about these kids? What? Are they superheroes? Do they fly? No, they don't fly, but they make our hearts show with joy. Oh, I hear they are so good. Even Alright, without further ado, let's welcome to the little dancing stars of class kids. Put your hands together for our super talented kids. Dancing to Bum Bum Bole. Let's make some noise. Come on kids, the stage is yours. Show your the magic.
क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुद भी सोचे Parents, please give me help, parents. We have a little star. मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले The yummy pizza, and how can we forget the chow mein and the momos? These may be tough to resist, but they also have a very bad effect on our health. Who will love the junk foods? Tell me. Who love the junk food? Raise your hands. Who love the junk food? I think almost everyone loves the junk food here. But these are very bad for our health. So let's see their bad effects too. खाइए पर बहुत कम, मंथली वंस या टॉयज ओनली, एक बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमारे स्टूडेंट्स आपको कुछ जंक फूड के बारे में ही बताने वाले हैं कि जंक फूड कितना हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। इसके बाद जंक फूड के बाद हमारे एलकेजी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम आएगा। आप सभी को अपने अपने बच्चों का जो सिर्फ क्यूट ही नहीं सुपर डुपर क्यूट होने वाले हैं। हाँ, और ये परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो छोटे छोटे सुपरस्टार जो मैथ्स की दुनिया के हैं असली आइंस्टाइन। उन्होंने आज तो सबको एक ही फॉर्मूला समझाया है। कौन सा फॉर्मूला? अरे वही 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। हाँ भाई, ये तो एलकेजी के छोटे मैथमेटिशियंस हैं जो अपने डांस से आपका दिल जीत लेंगे। तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे एलकेजी की सुपरस्टार बच्चों का जो लेकर आ रही है एक सुपरहिट परफॉर्मेंस। लेडी La
वेबसाइट, फेसबुक चैनल और यूट्यूब लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा लिंक। दोस्तों, क्या आपको पता है हो जाए और स्वागत करें यूकेजी के नन्हे मुन्ने सेंटर्स और उनके जिंगल बेल्स का। चलिए आप सबके लिए आ रहे हैं यूकेजी के ये प्यारे प्यारे बच्चे। बच्चों का प्रोग्राम आगे क्लासेस में इनको उठना पड़ेगा।
honor our chief guest, respected chief guest. He is having some emergency, so he is going. So I would like to request to our MD sir to give the honor to our chief guest. चीफ गेस्ट जी को जाना पड़ रहा है, उनका यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की तरफ से हम आपको एक डिस्टिंक्शन देना पसंद करेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद मैं चाहता हूँ। श्री सत्यवती जी एक इंजीनियर के हैं, तो सर Please do the clapping. संकट हो गई है बच्चों के लिए। टाइम नहीं लग रहा है मतलब क्या? बाहर भेजने में भी बच्चों को डर लगता है कि किसके बच्चे के साथ क्या हो जाए। तो बच्चों के ऊपर खासकर मॉनिटरिंग रखें, जैसे बच्चे का कुछ व्यवहार चेंज होना, तो माँ बाप का एक बड़ा दायित्व रहता है। जैसे भटजी ने भी बताया कि एकदम आप मॉनिटरिंग रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मोटरसाइकिल ना दें, बड़े बड़े जुर्माने हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। और जैसे असम पब्लिक स्कूल से 2-3 बच्चे जो आज PCSC में यहाँ पे निकले हैं, तो बड़े गर्व की बात है कि सितारगंज जैसे क्षेत्र से और उत्तरांचल टॉप करना, पूरा उत्तराखंड को टॉप करना, ये बड़ी गौरव की बात है। तो आप सब बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बहुत मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को जल्दी निकलना भी है, मेरी मीटिंग है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे मध्य श्री केसी जोशी जी आपसे अजीत जोशी के पिताजी उनको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद भटजी। असम पब्लिक स्कूल जो है, आप जो है एक शिकागो का बड़ा नाम रोशन किया है। इसी स्कूल में मेरा बेटा आशीष जोशी जिसने विद्यार्थन किया और अब जो है उत्तरांचल टीचर्स का टॉप किया है। मैं सारे बच्चों से यही कामना करता हूँ कि वो अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। जिसे मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी 4 लड़कियां हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान अब चल रहा है, मैंने आज से 25 साल पहले मेरी एक लड़की जो है हेलो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान अब जो आज चल रहा है, मेरे आज से 30 साल पहले मेरी 4 लड़कियां हैं, जिसमें मेरी एक लड़की PCS से निकल गई है, उसमें जो है डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। एक लड़की मेरी लेक्चरर है, एक लड़की मेरी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो है, एक लड़की मेरी आर्मी में मेजर है और एक लड़का मेरा इसमें उत्तरांचल टीचर टॉप किया है। तो बच्चों के नाम से ही माँ बाप का नाम रोशन होता है और हर माँ बाप लोगों के बच्चों के पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान तो नहीं दे पाया क्योंकि मैं तो फील्ड में जेई से डिपार्टमेंट में जेई से रिटायरमेंट हुआ। मैं सुबह जाता शाम को आता, मुझे ये पता नहीं रहता था कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इसका सब गृहिणी जो है, घरवाली जो है, उसके ऊपर बड़ा सही जाता है अपने बच्चों के विकास के लिए। मैं यही सबसे माँ बापों से यही करता हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो बच्चों से ही अपेक्षा करता हूँ कि अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही मेरी क्षमता है। धन्यवाद। सर